शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। শুরুতেই নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের। আসুন নজর রাখি আজকের নিউজ হেডলাইন্সে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জে পুলিশি তরফে নাকা চেকিং চালানোর সময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করলো 1,70,000 টাকা নগদ। উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ নিয়ে ওই ব্যক্তি কোথায় যাচ্ছিল তার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোলে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা করলেন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক থেকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন জেপি নাড্ডা। রানীগঞ্জ বিধানসভার সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকরের কাছে কতটা চ্যালেঞ্জ এবারের বিধানসভা নির্বাচন, কি রণকৌশলে এগোচ্ছেন তিনি, দেখুন প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার পাবলিক টাইমসের এডিটর ইন চিফ বিনোদ জসওয়ালের। প্রচারে চমক আনছেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার আসানসোলে দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ করলেন প্রচার, অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন জামুরিয়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হরেরাম সিং। দুর্গাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের বাইরে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বিধানসভা ভোটে 80 ঊর্ধ্বদের জন্য অভিনব উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের। 80 ঊর্ধ্ব ভোটারদের যাতে বুথে গিয়ে ভোট দিতে না হয় সেই লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি ব্যালট পোস্টারের মাধ্যমে ভোট নেওয়ার কাজ শুরু করল নির্বাচন কমিশন। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিশ্বনাথ পারিয়ালের সমর্থনে প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে গেলেন অনুব্রত মণ্ডল। বললেন রাজ্যে করোনা নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ পয়লা বৈশাখ, ব্যবসায়ীদের হালখাতা করার দিন। এবার কোভিড নিয়ম মেনেই মন্দিরে মন্দিরে হলো পুজো। আসানসোলের ঘাগরবুড়ি মন্দির থেকে দুর্গাপুরের পেয়ালা কালী মন্দির সর্বত্রই ছিল ভক্তদের ঢল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে জামুরিয়ার দরবারডাঙ্গা ঘাটে পুলিশি তরফে চালানো হলো নাকা চেকিং। সমস্ত যানবাহনে চালানো হয় তল্লাশি অভিযান। আসানসোলের কাল্লা ছট ঘাটের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা কৃষ্ণপ্রসাদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হলো। পুলিশি আশ্বাসে যদিও পরে তুলে নেওয়া হয় অবরোধ কর্মসূচি। रानीगंज के मंगलपुर में नाका चेकिंग के दौरान व्यवसायी के पास से 1,70,000 रुपए कैश बरामद। रुपए के स्रोत को लेकर व्यवसायी से पूछताछ में जुटी पुलिस।
रानीगंज थाना क्षेत्र के मंगलपुर ओवरब्रिज के पास नाका चेकिंग के दौरान कार में सवार व्यवसायी के पास से नगद 1,70,000 रुपए बरामद किए गए। नाका पॉइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बृहस्पतिवार की शाम दुर्गापुर की तरफ से आ रही कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें से एक बैग बरामद हुआ। पुलिस कर्मियों ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी तलाशी ली तो उसमें नगद रुपए बरामद हुए। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रानीगंज के व्यवसायी राकेश तोदी और शरद तोदी तेल के व्यवसाय से जुड़े हैं और दुर्गापुर से तगादा करके वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के सर्विस रोड से मंगलपुर से होकर रोनाई की तरफ आगे बढ़ी, वैसे ही नाका चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उनकी कार को रोक ली और तलाशी शुरू कर दी। दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर नाका चेकिंग की जा रही है और नाका पॉइंट से गुजरने वाले प्रत्येक वाहनों को रोककर न सिर्फ उनकी तलाशी ली जा रही है बल्कि उनके नंबर भी रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गैस बरामदगी को लेकर उक्त व्यवसायी से पूछताछ की गई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन रुपयों का स्रोत क्या है और रुपयों से संबंधित कागजात तलब किए गए हैं। अगर व्यवसायी रुपयों के स्रोत से संबंधित सटीक कागजात लेकर आते हैं तो उन्हें उनके रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आसनसोल में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। आसनसोल पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आसनसोल में बुद्धिजीवियों के साथ बुधवार को आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एक होटल में बैठक की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तृणमूल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बंगाल को सिंडिकेट, कटमनी और भ्रष्टाचार ने ध्वस्त कर दिया है। यहाँ सही नेतृत्व होना चाहिए। बंगाल को ईमानदार नेता चाहिए जो भाजपा दे सकती है। इस चुनाव में बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने का मौका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि भाजपा के पास नेता और नीति है। जनता भी परिवर्तन चाह रही है। बंगाल में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन कुछ समय में यह सारे का सारा धाराशाही है। इसलिए ये चुनाव जो है इसको आसानी से मत लेना। ये सिर्फ अग्निमित्रा को पॉल का चुनाव जीतने का ही नहीं है, ये बंगाल की तस्वीर और तकदीर के बदलने का मौका है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जब तक नेता ईमानदार नहीं होगा, विकास के लिए कितना भी पैसा लगा दो कुछ नहीं होने वाला है। नेता ईमानदार पैदा करना होगा और वो भारतीय जनता पार्टी का रही है। इस बात को हमको समझना। हम जब बंगाल की बात करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपके सामने बहुत फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि यह जाना गया है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। और ये कहने के लिए नहीं है। सोशल लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, ये सब बंगाल की धरती से निकले। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बुद्धिजीवियों ने स्वागत किया। उन्होंने आए हुए लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने स्वागत संबोधन किया। सांसद सह युवा मोर्चा राज्य अध्यक्ष सौमित्र खां, पूर्व राज्यसभा सांसद सपन दासगुप्ता, सौरभ सिकदार, जिला संयोजक शिवराम बर्मन, प्रोफेसर JN राय, बुद्धिजीवी शेल के तुषार कांति बैनर्जी, बार काउंसिल अध्यक्ष राजेश तिवारी, SN लांबा, भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह, सचिव बप्पा चैटर्जी, पवन कुमार सिंह, सुधा देवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। भैया मोबाइल सेल्फी बाद में भैया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
रानीगंज विधानसभा केंद्र से संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर के साथ पब्लिक टाइम्स के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल के साथ खास बातचीत। सीपीआईएम प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर के सामने रखे गए कई सवाल। रानीगंज विधानसभा केंद्र की जनता के लिए क्या है मोर्चा प्रत्याशी के पास अपनी योजना, आइए देखते हैं हेमंत प्रभाकर और पब्लिक टाइम्स की विशेष पेशकश पब्लिक टाइम्स टॉक शो। रानीगंज विधानसभा सीट के 7वें चरण के तहत आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनावी मैदान सज चुका है और योद्धा भी लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं। बात अगर रानीगंज विधानसभा सीट की करे तो यहाँ योद्धा वही है, अगर बदला है तो सिर्फ लड़ाई का मैदान। दरअसल तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तापस बनर्जी प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं और उनके सामने है सीपीएम प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों योद्धाओं की भिड़ंत आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। भले ही चुनावी बाजी तापस बनर्जी जीत गए थे, लेकिन हेमंत प्रभाकर ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। अब भले ही इन दोनों प्रत्याशियों की विधानसभा सीटें बदल गई हैं, लेकिन एक बार फिर से इन दोनों के बीच भिड़ंत होने जा रही है। इस बार भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बिजन कुमार मुखर्जी के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बन गई है। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा सीट से सीपीएम के टिकट पर रूनू दत्ता विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पर डीवाईएफआई नेता और पार्टी के युवा चेहरे हेमंत प्रभाकर पर भरोसा जताया है। चुनाव प्रचार के दौरान कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से कैसे समर्थन मिल रहा है, चुनाव से संबंधित ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर सीपीएम प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर ने पब्लिक टाइम्स के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल के साथ खास बातचीत की। पेश है पूरा इंटरव्यू। नमस्कार, पब्लिक टाइम्स के दर्शकों को एक बार फिर पब्लिक टाइम्स की ओर से बहुत बहुत बांग्ला नव वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारे बीच एक और कैंडिडेट आपसे रूबरू होने आए हैं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, परंतु पब्लिक टाइम्स हमेशा ही निष्पक्षता को सामने रखते आया, हर कैंडिडेट को बराबरी का दर्जा दिया है, इसलिए उनका परिचय भी देना पब्लिक टाइम्स ये ज़रूरी समझता है। आप लोगों को बता दें कि 1998 में छात्र जीवन से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और बहुत अच्छे नेता के रूप में, छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे और वहाँ से पहली बार उन्होंने 2016 के विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से चुनाव लड़ा था और उनकी पराजय हुई थी, परंतु वो सिलसिला उन्होंने वहीं पर नहीं थम कर रहा। उसके बाद भी उन्होंने राजनीति की लड़ाई लड़ती रही और पार्टी ने दोबारा उन्हें विश्वास जताया और कैंडिडेट बनाया। बरतर से फर्क बस इतना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी है रानीगंज विधानसभा केंद्र के संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी हैं और उनके सामने जिस तरह से आसनसोल साउथ में तापस बनर्जी प्रतिद्वंदिता कर रहे थे, आज भी केवल स्थान बदले हैं, विधानसभा केंद्र का संख्या बदला है, किंतु प्रतिद्वंदी जो है इनके सामने सेम है। तो आइए आज हम उन अनकही बातों को जानना चाहेंगे संयुक्त मोर्चा के सीपीएम के प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर जी से। आइए आपसे पेश है हेमंत प्रभाकर जी। मैं पब्लिक टाइम्स के चैनल के माध्यम से आपके प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक अन्य सा लड़के को, उम्मीदवार को, संयुक्त मोर्चा का उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर को अपने चैनल में अपनी बात रखने की मुझे जगह दी। इसके लिए आभारी हूँ मैं आपका। और आपके चैनल के माध्यम से रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत तमाम आज बांग्ला नववर्ष আছে सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। रानीगंज के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, शुभेच्छा, लाल सलाम पेश करता हूँ। मैं हेमंत प्रभाकर हूँ। ऐसे भी परिचय
बड़ी बात नहीं होती है। इस चुनाव में मैं साधारण जनता के रहनुमा के रूप में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रभाकर टाइटल से बहुतों को असमंजस हो जाता है कि प्रभाकर टाइटल कैसे हो गया। मैं हेमंत प्रभाकर, मेरा शर्मा टाइटल है, लेकिन पिताजी चूँकि रवि उनका नाम था, रवि का अर्थ सूर्य होता है, पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते थे, तो प्रभाकर का अर्थ भी सूर्य होता है, इसलिए मैं हेमंत प्रभाकर शर्मा लिखता था। तो मेरे जो क्लास टीचर थे 10 में, TN झा सर, अभी वो दिवंगत हो गए, मेरे मैथ के टीचर थे, उनसे मैं पढ़ता था। तो वो बोले कि इतना 5 फुट का लड़का इतना बड़ा नाम रखेगा, इसको काट दो। तो शर्मा 10 का सर्टिफिकेट में हेमंत प्रभाकर रह गया, तभी से हेमंत प्रभाकर नाम है। छात्र राजनीति से आपने तो पहले कहा, छात्र राजनीति से मेरा जिंदगी शुरू। हेमंत प्रभाकर जी, हम लोग आपको अपनी शुभकामनाओं के साथ आपको अपने दर्शकों के समक्ष लाए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप के तो प्रतिद्वंदी तापस बनर्जी से आप दक्षिण विधानसभा सीट में डिफीट खाए हैं और पुनः पार्टी ने आप पर ही भरोसा जताया, तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था इसलिए दोबारा आपको ही उनके विरुद्ध खड़ा कराया, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं, आप उनको जो कसस रह गई थी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उसको पूरा करने की मंशा लेके उतरे, क्या है? नहीं, हम लोग की पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है और हमारा किसी ये कोइंसिडेंट भी आप कह सकते हैं, उनका क्षेत्र बदल जाना और उसी क्षेत्र में मेरा चुनाव लड़ना, ये तापस बनर्जी के साथ लड़ना इस मंशा के साथ हम इस चुनाव में नहीं आए। हमारी मीनाक्षी कुट्टी की लड़की स्टेट प्रेसिडेंट और नंदीग्राम में जाकर चुनाव लड़ी है, ये हमारा पार्टी का सिद्धांत है, उसको मान्यता दिए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। 10 साल पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के नाम में जनता के साथ जो बदहाली हुई है, 7 साल इस परिवर्तन से जो हुए थे वो सोचे थे कि केंद्र की सरकार पर भरोसा किए थे, उनको भी ठगा गया है। इस ठगी के खिलाफ और ये चोर डकैतों का जो खेला हो चल रहा है, इस खेला के खिलाफ में हम मुद्दों के साथ इस चुनाव में आए। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आप दक्षिण विधानसभा केंद्र में CPM के उम्मीदवार थे और अपने चुनाव में पराजय हो, उसके बाद वहाँ उस केंद्र में आप जिस केंद्र से प्रतिद्वंदिता किए थे उस केंद्र में तापस बनर्जी विधायक हुए। आपको क्या लगता है कि वो अपने विधानसभा केंद्र जो था उनका, वहाँ पे वो कहाँ सफल हुए, कहाँ असफल हुए? अगर सफल होते तो जीता विधायक अपना केंद्र छोड़ के रानीगंज में नहीं आता, ये तय है। और मैं चूँकि उसी क्षेत्र का लड़का हूँ, बल्लभपुर में, रानीगंज में मैं पला बड़ा हूँ, TDB कॉलेज में पढ़ा हूँ, ज्ञानभारती स्कूल से स्कूली शिक्षा मारवाड़ी सरदन विद्यालय का मैं छात्र रहा था, तो मैं देखा हूँ। और विधायक के तौर पर व्यक्ति तापस बनर्जी के खिलाफ हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई 10 साल के जो विधायक थे उस पूरे व्यर्थ हैं। कोरोना में वो नजर नहीं है, जो वादा जनता से किए थे पूरा नहीं किया। ADDA के चेयरमैन के रूप में व्यर्थ साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरा पंचायत चुनाव में, मैं गाँव का लड़का हूँ, पंचायत चुनाव में वो खड़ा होकर बूथ लुटवाए थे। हम ऐसे खड़ा थे बल्लभपुर में और नूपुर गाँव में, बूथ में लूटने के बाद जब जनता प्रतिरोध कर रही है तो उनको पीटा गया, पुलिस को देकर पीटा गया। एक गरीब घर के लड़का के खिलाफ में झूठा केस रचा गया। ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है वो आपकी, और विकास का भी मुद्दा है। देखिए, विकास में आपको क्या लगता है पर्टिकुलर ये चीज उन्होंने किया नहीं, ये चीज आपके पास कुछ? देखिए, विकास है कि आसनसोल दक्षिण या पूरे राज्य में जो एक सरकार का गवर्नमेंट का काम होता है, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस हाइक, स्कूल कॉलेज बनाना, शिक्षा हम जिसको बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन तमाम चीज़ों में गवर्नमेंट फेल हुई है। और अब 2 किलो चावल और ये जो मुद्दा है, ये तो शुरू से किया हुआ है, ये नहीं था। आज के समय में प्रधान काम था बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, इसमें फेल है। इसलिए विधायक के रूप में उनको भी ये समालोचना उनको जाएगा, ये बात है। आसनसोल दक्षिण के डेवलपमेंट के रूप में कुछ रास्ता और घाट हुआ जिसमें भी काटमानी लिया गया है, इसलिए नया कोई योजना आया नहीं। जो कुछ आया है उसको भी नीचे सही तरह से पहुंचाया नहीं। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दक्षिण का समस्या था बाली, पूरा दामोदर नदी का बाली उनकी पार्टी ने, तृणमूल पार्टी ने लूट किया। वो बाबुल सुप्रियो जी भी उसको देखे हैं, इसलिए पूरा नदी धंस गया है, पूरा इलाका खराब हो गया है और वो खड़ा खड़ा देखे हैं। तो विधायक के तौर में मैं उनको असफल ही मानता हूँ। तो अभी आप जिस अंचल से खड़े हुए हैं, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र, अभी वर्तमान में आपके सामने उस क्षेत्र में कौन सी बड़ी समस्या आपको लगती है जो गवर्नमेंट फेल हुई है, ये या यहाँ के विधायक उसको इम्प्लीमेंट करने में फेल हुए हैं? आपकी नज़र में क्या समझ, आप जिस विधानसभा केंद्र से अपना प्रतिनिधित्व, अपना पार्टी का उम्मीदवार हुए हैं, आपको क्या लगता है ये
जगहों में हम लोगों की खामियां रही या सरकार की खामियां, या आज तक ही उसका पूरा नहीं हो पाया, क्या समझते हैं? रानीगंज में हमारा प्रायोरिटी, हम लोग ही वाटर प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपया खर्चा करके रानीगंज में, रानीगंज की जनता को पानी का किल्लत नहीं था। हमारा प्रायोरिटी है इस इलेक्शन में संयुक्त मोर्चा का सरकार बनेगा। रानीगंज म्यूनसिपलिटी को माने गायब जोर दखल हो जाए, जनता का सेंटिमेंट संवेदनाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ जाके तृणमूल की गवर्नमेंट इन्हीं जतेंद्र तिवारी के नेतृत्व में जो आज भाजपा में चले गए हैं, और म्यूनसिपलिटी को कॉर्पोरेशन से जोड़ दिए। आज रानीगंज म्यूनसिपलिटी खत्म हो गया, अननेचुरल वे में टैक्स पड़ा। हमारा प्रायोरिटी रहेगा रानीगंज म्यूनसिपलिटी को लौटा के लाना, एक। नंबर 2, ये जो होल्डिंग टैक्स या ट्रेड लाइसेंस में है पैसा वसूल हुआ, लूटा गया है रानीगंज की जनता को, रानीगंज के बिजनेसमैन को लूटा गया है, ये टैक्स हम बंद करेंगे। नंबर 3, हमारा बाईपास, ये जब आपको याद होगा कि NH60 को जब जोड़ा गया था बिना हमें बताए, NSB रोड को NH60 पर चपा दिया था। हम लोग प्रतिवाद किए थे, अरुण दत्त उसमें हमारे लीडर थे, चेयरमैन थे अनूप बाबू, हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, वंशो गोपाल चौधरी प्रोटेस्ट किए थे। अभी भी चिट्ठी हमारे पास है कि NH60 को जोड़िए नहीं, तो शर्त था कि नहीं बाईपास करेंगे तब जोड़ेंगे, लेकिन उसको एक जबरदस्ती जोड़ा भी गया और बाईपास नहीं किया गया। बाईपास का प्रोजेक्ट हम पूरा तैयार करके रखे थे कि ताकि बाईपास एकदम आपका मंगलपुर से होकर इधर होके इधर रानीशाह इधर से होकर बाईपास जाएगा एकदम बांकुड़ा तक। लेकिन ये प्रोजेक्ट तैयार रह के उसके बाद भी तो जब विधायक बने तो विधानसभा में बाईपास का सवाल उठाया गया था। तो बाईपास हमारा प्रायोरिटी में रहेगा ताकि ट्रैफिक जो है रानीगंज का समस्या वो समाधान हो सके। हमारा रानीगंज में जो काम अभी तक बाकी है, बहुत जगह में रास्ता का प्रॉब्लम है, ड्रेन साफ नहीं होता, म्यूनसिपलिटी फेल है, इसको हम लौटा के लेके आएंगे। और सबसे बड़ी मांग हमारा है कि जब पश्चिम बर्धमान जिला बना तो आपको याद होगा कि रानीगंज ঐতিহ্যবাহী শহর, সে শহর একটা গুরুত্ব ছিল, শৈলজানন্দের শহর বলা হয় রানীগঞ্জকে। কৈলাখনি অঞ্চল প্রিন্স দ্বারিকানাথ ठाकुर यहाँ पे आए थे, तो रानीगंज एक आलादा मर्यादा छिलो। इस रानीगंज का गौरवशाली अतीत को सामने रखकर हम मांग किए हैं, प्रशासन से मांग किए हैं कि इसको महकुमा बनाया जाए। रानीगंज जमुरिया को जोड़ के अगर महकुमा बनता है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका इंपॉर्टेंस होगा वो बहुत बढ़ जाएगा और रानीगंज की जनता को इससे फायदा होगा। तो हम संयुक्त मोर्चा का सरकार बनाएंगे, हम सब डिवीजन करेंगे रानीगंज। আচ্ছা, যে অভিযোগটা বারবার আপনাদের বিধায়কের বিরুদ্ধে আনা হয় যে যদি তাদের সরকার না আসে তো সেই বিধায়ক এখানকার ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। আপনাদের রুনু দত্তর নামে অনেক ধরনের কি উনি রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেন নাই, উনি মানুষের সামনে দাঁড়ান নেই, উনি ইনঅ্যাক্টিভ বিধায়ক হিসাবে মানুষ প্রশ্ন তুলেছে। ওই ব্যাপারে আপনাদের যদি সরকার না হয় তাহলে কি মানুষ ওই ছবিটা আপনার কাছে পাবে? বয়সটা ওনার 55 বছর হওয়া সত্ত্বেও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মানুষের কোনো সমালোচনা থাকলে আমরা তাদেরকে রেকটিফাইড করব, কিন্তু বিরোধীরাও এই ক্ষেত্রে অনেক ইন্ধন জুগিয়েছে। আপনি বলুন করোনা পিরিয়ডে রুনু দত্তকে রানীগঞ্জে দেখা যায়নি, 7,500 টাকা দিতে হবে রুনু দত্ত রাস্তায়। আপনাদের তৃণমূলের কাউন্সিলররা জবরদস্তি দখল করলো, কাউন্সিলররা সই করার জন্য টাকা নিচ্ছে। একদম রোনাই থেকে শুরু করে এমন কোনো দিন রুনু দত্ত হচ্ছে যে বসে সার্টিফিকেট সই করেনি এই বয়সে করোনার পিরিয়ডে। আচ্ছা বলুন তো করোনা পিরিয়ডে বাবুল সুপ্রিয়কে এত মানুষ ভোট দিল, কবার রানীগঞ্জের মানুষ দেখতে পেয়েছে? আমি কাজ বলছি না, দেখতে পেয়েছেন আসানসোলের সাংসদকে হেয়ার কাটিং এর সেলুন বসে তিনি হেয়ার কাট কাটছেন, সেলুনে ছাড়ছেন, রাস্তায় লাশ পড়ে আছে, মাইগ্রেন লেবারদের সমস্যা। এই রুনু দত্ত একদম নিজে বাইপাসে, আমি নিজে সাক্ষী। আমি তো কোনো বিধায়ক নয়, আমি অঞ্চলে কাজ করি। রুনু দত্তকে সামনে রেখে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাঁকুড়া পাঠিয়েছিলাম, আমার তো এখন খাওয়া পাঠিয়েছিলাম রুনু দত্ত রাস্তায়। এমন কোনো দিন নেই কোনো লড়াই আন্দোলন, সে কর্পোরেশন বাঁচাবার লড়াই হোক, ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ হোক, 10 বার কর্পোরেশন তিনি ঘেরাও করেছিলেন, চিঠি করেছিলেন। জলের সমস্যা উপড়া এই অঞ্চলে রানীগঞ্জের জল সমস্যা নিয়ে তিনি সুব্রত মুখার্জি মন্ত্রী তখন চেঞ্জ হলো মলেঘটের মধ্যে তিনি চিঠি করেছেন। রাস্তায় উন্নত ছিলেন না এই বলাটা ঠিক নয়, প্রতিটা মিটিং মিছিল প্রতিবাদে ওনাকে সামনের সারিতে দেখা যায়। নম্বর যেটা বলা উচিত কি বলুন যে উল্টো আপনি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বড় চেয়ারম্যান, महारानी जी छत्ता से नीचे नहीं उतरे थे। आज तो पूरा बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। तो हम लोग कॉर्पोरेशन का काउंसिलर को कहाँ कोरोना में देखें? আপনি কখন মূল্যায়ন করবেন? বিপদে যদি কেউ পাশে না থাকে, अगर विपद हो और घर का मुखिया भाग जाए तब आप उसका मूल्यांकन करिएगा। विपद में रूमदार रानीगंज में सब समय साथ में थे, आज भी 55 साल का बूढ़ा रास्ता में है। और मैं कहूँगा कि मैं अगर सरकार तो बनाऊंगा, अगर सरकार नहीं भी, अगर जनता का राय है, लेकिन इस क्षेत्र में मेरा लड़ाई का एक अलग इतिहास हम लोग का रहा है। ऐसा लड़ूंगा कि सिर्फ इस विधानसभा के लिए पूरे बंगाल की जनता क्या। आपको बिट्टू बाबू नहीं लगता है? हम इसलिए बोल रहे हैं बिट्टू बाबू की क्योंकि उनका नाम बिट्टू बाबू भी है, डाक नाम। हेमंत बाबू आप बताइए कि बाबुल सुप्रियो अपने अंचल में नजर नहीं आए कोरोना में, ये कोई মানে এটা কি অজুহাত হতে পারে যে ওরা নজর আসলো না তো আমরা নজর আসবো না?
না রুনুদা নজর আসেনি এটা কেউ বলতে পারবে না। এটা অভিযোগ তো তৃণমূল সবসময় আচ্ছা তৃণমূল তো করবে, যারা নিজেরা কাউন্সিলররা ছিল মাঠে, তার চেয়ারম্যানরা মাঠে ছিল, সঙ্গীতা সারদাকে বড় করোনা পিরিয়ডে দেখা যায়। আপনার মনে নেই, আপনি ভুলে গেছেন, রুনুদা আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্যানিটাইজ করতে বেরিয়েছিলেন, দামোদর শিশু বাগানে অঞ্চলগুলোতে স্প্রে করার জন্য বেরিয়েছিলেন। রুনুদা প্রতিদিন কোথাও না করলেন। আপনি 8:30-9টার সময় যান রুনুদাকে আপনি কোনো না কোনো চা দোকানে পাবেন। রাত্রিবেলা তৃণমূলের কোন নেতাকে আপনি ময়দানে পান বলুন? আমি তো দেখেছি রুনুদা তো এই এলাকার লোক, এখানে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তিনি ছিলেন। রুনুদা রাস্তায় থাকেন না বলা যায়, তাহলে 10 বছর কর্পোরেশন মানুষ তেমনি তাকে নির্বাচিত। নুরুদা ভালো লোক, হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন। আপনি আবার চান কি উনি দেখুন রুনুদা হচ্ছে যে অপাদ মস্তক ভদ্রলোক, সেটা নো ডাউট, উনি ভদ্রলোক আছে, সেটা রানীগঞ্জের মানুষ, বাট অভিযোগ আছে যে নাথিং ফর গুড ফর নাথিং। না না, এই অভিযোগ সঙ্গে আমি একমত নয়। আমি পার্টি করি বলে শুধু তাই নয়, আমি রুনুদাকে চেয়ারম্যান থেকে দেখেছি। ইজিলি অ্যাভেলেবেল বলে যদি কেউ থাকে আমাদের রানীগঞ্জে, সেটা রুনুদত্ত। আপনি ফোন করুন, আপনি ঢাক পাঠান, রুনুদা বলতে পার্টি ওনাকে এন্টি ইনকামপেন্সির জন্য দাঁড় করাবো না এবার? না না, আমাদের পার্টি এটা পার্টির সিদ্ধান্ত, বামফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উনি তো উইনিং ক্যান্ডিডেট, তাহলে অনেকগুলো উইনিং ক্যান্ডিডেট আমাদের এখানে চেঞ্জ হয়েছে। মানস মুখার্জি দাপুটের নেতা, আমাদের কামারহাটির অনেকগুলো বয়স্ক মানুষকে চেঞ্জ হয়েছে। এবং উনি নিজে হচ্ছে যে বলেছে কিনা আমি নতুন জেনারেশনকে এগিয়ে দেবো। রুনুদাকে কেউ দাঁড় করাবেন এটা তা হয়? রুনুদা নিজে চেয়েছিলেন, পার্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পার্টির সঙ্গে তিনি একমত, এবং তিনি আমাদেরকে বলেছেন যাও बाप इतना दिन लड़ा बेटा अब लड़ो, यही सिद्धांत है। क्या आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? 7% का वोट लेके मूल्यांकन था। कुछ लोग भी बोलते कि आपका जो लोकसभा में इतना वोट कम किया, तो कहना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उनका तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। नवान्नों का आंदोलन, ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जमात, 21,000 रुपया मजदूरी करना पड़ेगा, उस मांग पे पूरे बंगाल में हड़ताल, रानीगंज का हड़ताल आप लोग देखे होंगे, क्या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आदमी का। ये दोनों सरकार के ठगबाज जो दोनों खड़ा है, ये असल में भाई बहन की सरकार है, रावण और शूर्पणखा की सरकार है। ये दोनों सरकार के खिलाफ आदमी में गुस्सा है। बोले ये किसान लोग का आंदोलन, किसान का हड़ताल, ये सब मिलके एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन पूरा बंगाल में तैयार हुआ है। अब जो लोग इतना दिन टीका और टोपी के नाम पर राजनीति कर रहे थे, हर टोपी पहनने वाला गद्दार नहीं होता है, और हर टीका लगाने वाला भी सांप्रदायिक नहीं होता है। आज का समाज में ये समझना पड़ेगा कि आपका नाम अगर राम है और आपका नाम रहमान है, आप अगर राम बोलते हो और वो अगर अल्लाह बोलता है, यहाँ पे आप अलग हो, अलग अलग रास्ते जाते हो। लेकिन रानीगंज का बाजार में अगर थैला लेके सब्जी खरीदने जाइएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चाहे राम हो चाहे आप रहमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप बाजार से निकाल दिए जाओगे। हम इसी राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। क्या कमी आपको लग रहा है रानीगंज में? इस बात को आप अवॉइड कर जा रहे हैं, पर्टिकुलरली बोले कि क्या आप अगर विधायक बनते हैं यहाँ पर, विधायक का चुनाव, शुभकामना हमारी आपके साथ है, क्या चैलेंजिंग है इस विधानसभा? एम्प्लॉयमेंट हमारा रानीगंज का सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग मंगलपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाए थे, तृणमूल का नेता लोग को बड़ा आदमी बनाने के लिए नहीं बनाया था हम लोग। उसमें लोकल लड़का लोग को नौकरी फर्स्ट प्रायोरिटी, एक डीबीसी लोकल लड़का हमारा विधानसभा में पड़ेगा। आपको याद होगा कि मैं जो डीवाईएफआई का सचिव था, तो डीबीसी का आंदोलन एकदम मतलब प्राय 4 से 5 लड़का को लेकर हमने घेराव किया था। डीबीसी का आंदोलन, एम्प्लॉयमेंट पहला मुद्दा। नंबर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, स्कूल सर्विस कमीशन, टेट का परीक्षा बंद है, और राज्य में चालू होगा, हमारा सरकार आएगा तो रानीगंज का भी नौकरी मिलेगा। रानीगंज म्यूनिसिपैलिटी हम लोग फिर लौटा के लेके आएंगे, जो पहले भी बोले बाईपास हम लोग तैयार करेंगे। रेशन कार्ड, रानीगंज कॉर्पोरेशन में 1000 आदमी का राशन कार्ड बर्बाद हुआ, उसको लौटा के लाना है। अननेचुरल जो टैक्स बढ़ाया गया बोझ, चाहे ट्रेड लाइसेंस के नाम पे हो चाहे होल्डिंग टैक्स के नाम पे, उसको हम लोग कम करेंगे। ये रानीगंज में प्रायोरिटी है। और नंबर 3 स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई का खर्चा, टीडीपी कॉलेज में पढ़ाई के लिए 5 रुपये खर्चा होता है एडमिशन के लिए। हमारा टाइम में 900, आप भी शायद कॉलेज में पढ़े, आप जानते होंगे, तो बहुत सारे छात्र हम लोग भी पढ़े, 900 रुपये में पढ़ते थे। और सादा कागज में एप्लीकेशन करने से स्टूडेंट्स यूनियन था वहाँ पे, हम लोग को 100 रुपये में भर्ती हुए। आज 5,000 টাকা শুধুমাত্র टीडीपी कॉलेज থেকে ভর্তি হওয়ার জন্য লাগে। ये सब को हम लोग बंद करेंगे। तो बेसिक जो आदमी का मुद्दा है, आज सिर्फ भीख देने से नहीं चलेगा। भीख भी तो आप नहीं दे रहे हो ना। कोरोना में चावल आप ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, दाल नहीं दी। हमारा मांग था कि 10 किलो करके अनाज देना पड़ेगा, चावल दाल आलू तेल, 7,500 रुपये करके बैंक अकाउंट में देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में सब सरकार बोला था EMI माफ होगा, किसी का EMI माफ नहीं हुआ। लोन माफ होगा, किसी का लोन माफ हुआ। स्कूल कॉलेज का फीस, गरीब घर का आदमी अपना बेटा को पढ़ाने के लिए जो मैंने पैसा तिनका जोड़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसको सपना, उसको भी बोला गया था कि स्कूल का फीस माफ होगा, माफ नहीं हुआ। इसलिए सब चीज जो बेसिक मुद्दा है, जिससे आदमी का बेसिक समस्या समाधान हो, ताकि भीख के लिए नेता का बस हाथ नहीं पसारना पड़े, हम उसी मुद्दों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपके लिए कौन है आपका प्रतिपक्ष? अपना प्रतिपक्ष के
আমার আপনার প্রতিপক্ষ তৃণমূল না আপনার প্রতিপক্ষ বিজেপি, কার ক্যান্ডিডেটকে আপনি নিজের প্রতিপক্ষ মানছেন? अभी बीजे मूल वो तो जीजा जी आलू वाली जी सांसद है, साला जीजा। देखिए कहावत है कि पूरी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो लाइन में लगे हुए हैं। अभी तो तृणमूल वाला का जितना आदमी था सब तो कमल फूल में जा रहा है। हम लोग भोजपुरी में पुराना दिन में, मैं नवादा जिला का लड़का हूँ, नावाडी बोल के एक छोटा सा गाँव, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मेरा पिताजी का जन्म हुआ है, पुश्तैनी गाँव वहाँ पर है। तो हम लोग छोटा में गाना सुनते थे कि कैसे बनी फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी। तो फुलौड़ी बिना चटनी भी नहीं बनता है, तो बिना तृणमूल के भाजपा भी नहीं बनता है। 10 साल पहले जिस जोड़ा फूल का जन्म हुआ था वो 10 साल के बाद बड़ा होकर कमल फूल बना है। इसलिए यहाँ आलादा पार्टी नहीं है, हमारा प्रतिपक्ष बीजे मूल पार्टी है और हम सिद्धांत पे लड़ रहे हैं, हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। अगर हम मुद्दों के साथ जिस शिद्दत के साथ जनता के बीच जा रहे, जनता हमको आशीर्वाद दे रही, मैं मानता हूँ मेरा कोई प्रतिपक्ष है। जहाँ मेरे लिए जनता खड़ी है, जरा मेरे लिए तो आप समझते हैं मेरा उतना योग्यता कितना हो तो जीतने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं, उनका पास गाड़ी है, पैसा है, लेकिन मेरे पास तो सब नहीं है। लेकिन मेरे पास रानीगंज में रिक्शा चलाने वाला का टपकता पसीना है, वो हमने करीब से देखा है। हमें फुटनी करो जन पार्टी तो ऐसे नहीं, हम बरसात जब होता है तो छत से कैसे पानी टप 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 गिरता है, तो वो हमने देखा है करीब से। वो नहीं समझेंगे इसका दर्द जो आज नेता लोग हैं। हम लोग बोलते हैं का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया मैं जगर गोड़ में ना फटे भी है, जाए ना पीप रहे। इसका पैर कभी फटा नहीं, वो पैर फटने का दर्द नहीं जानेगा। मेरे साथ तो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, वो बेकार नौजवान जिसका 10 साल 7 साल में चेहरा सूख गया है। केंद्र सरकार बोला कि कोई बहाली नहीं होगा, बंद कर दिया घोषणा करके। ये पहली सरकार है जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और सर्कुलर करके बोल दी काम नहीं होगा। मेरे साथ वो बेकार नौजवान है, मेरे साथ खड़ा है, वो छात्र है जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला और पढ़ने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। ये आना चाहिए था ना, हर साल रामनवमी का रैली होना चाहिए, हर साल ताजिया निकलना चाहिए, 34 साल में होता था। लेकिन वोट चलाने के लिए हम लोग को कभी इंशाअल्लाह या जय श्री राम नहीं बोला। ये नाटकबाजी है। इसके खिलाफ में जो अमन चैन सुकून पसंद करते हैं वो मेरे साथ खड़ा है। तो इतना लोग का प्यार है तो आपको लगता है कि मेरे सामने कोई प्रतिपक्ष खड़ा है? जनता जीतेगी, हिंदुस्तान हमारा पैसा हारेगा और वहाँ पर जो काटमनी खाने वाले लोग हैं वो परास्त होंगे और रानीगंज के जनता का जज्बात जीतेगी। रानीगंज पिछले 5 सालों में जिस दौर से गुजरा है उस दौर को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। दंगा का वो दर्दनाक मंजर, आपको क्या लगता है कि उस समय सीपीएम की भूमिका रानीगंज में शांति कायम करने के लिए जो होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं आप लोग विफल रहे हैं? आप लोगों के विधायक की कोई भूमिका नहीं रही, आप लोगों की पार्टी की कोई भूमिका नहीं रही। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये जजमेंट की बात नहीं है, बट जनता ऐसा उनका अनुभव रहा कि विधायक हो या यहाँ के विरोधी दल के नेता खूब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे इस चीज़ को संभालने में। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सबसे बड़ा प्रमाण है कि 34 साल हमने सरकार चला, कभी कोई दंगा रानीगंज में हुआ नहीं। तो जिनके कारण हुआ उनको तो ये समालोचना जाना चाहिए। हम रहते तो दंगा होता ही नहीं। दंगा होने के बाद ऐसा सिचुएशन हालात पैदा किए, रुदत्तों को ढुकने नहीं दिया गया, वो मर्डर हो जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने जो हालात रानीगंज में पैदा किए थे, सांसद को भी आना चाहिए था ना, नहीं आना, नहीं घुसने दिया जा रहा था, विरोधियों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग पार्टी बस में बैठ के थे, बार बार कोशिश कर रहे थे हम जाएंगे वहाँ पर। पुलिस प्रशासन ऐसा हालत पैदा हुआ कि माइनस कर दो इसको। तो हम लोग तो कहते कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना चाहिए था। 34 साल हमने कभी दंगा होने नहीं दिया। दंगा होगा ही क्यों? हम तो अभी भी चैलेंज करते हैं कि बायमा हस्त का सरकार होगा तो रानीगंज में किसी की मजाल नहीं है कि टोपी और टीका के नाम पे यहाँ पे दंगा कर दें। ये हालात ही पैदा नहीं होती। हाँ, दुखजनक घटना घटी, हम लोग तो आँख का सामने देखे थे। हम तो वहीं पर बगल में दूर में खड़ा थे, बम का धमाका का आवाज, पुलिस का हाथ उड़ जाना। हम तो देखे कि जो लोग दंगा किया और दुकान हिंदू का भी लूटा गया, मुसलमान का भी लूटा गया। लूटने वाले लोग वही थे जो सुबह में गमछा ओढ़ के पार्टी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, वही दुकान लूट रहे थे, दुकान का पैसा जूता चुरा के जा रहे थे। ये दर्द हमने झेला है। मैं कहूँगा कि ये गंदा राजनीति बंद हो। आज भी वो रोना चीखना हमें याद है। आसनसोल रानीगंज का जो चीख था वो चीख यहाँ पे टीस लगता है। हमारा काउंसिलर अरिजदा था, उपस्थित था। ये नहीं था, ऐसा बात नहीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिर खबर लिया, बस्ती में फिर उन्होंने गए थे, ऐसा बात नहीं। कोशिश हम लोग किए थे, लेकिन उस समय का हालात ऐसा पैदा हुआ था जो देखिए हम लोग इस चीज को फेस नहीं कर पाए, गलत है। आपको याद होगा कि गुंडाबाजी बमबाजी जब कॉर्पोरेशन चुनाव में हो रहा था तो भाजपा होने के बाद भी सांसद थे बहुत सुप्रीम, वो चुनाव में उसका आदमी का लोग एक दूसरे का छोड़ कहीं फेस नहीं कर पाया। पंचायत चुनाव में वो लोग खड़ा नहीं हो पाया रानीगंज में, कहीं बल्लभपुर में। लेकिन हम लोग उस दौर में भी शिद्दत के साथ तृणमूल के खिलाफ लड़े और 5 कॉर्पोरेशन हम लोग यहाँ पे वार्ड हम लोग जीते थे। तो हम लोग लड़ाई से आखिरी प्रश्न है हेमंत प्रभाकर जी कि
विरोधी दल बीजेपी हो या फिर सत्ता दल तृणमूल कांग्रेस, आप लोगों के विरोध में हमेशा यही बातें सुनने को मिलती कि जी 34 सालों में आप लोगों ने अपने शासनकाल में কিছুই করতে পারেননি, যেভাবে এইখানকার রাজ্যে বিকাশ হওয়া দরকার ছিল, যেভাবে এমপ্লয়মেন্ট হওয়া দরকার ছিল, যেভাবে এখানে মানুষের বাক স্বাধীনতা দরকার ছিল, নানা ধরনের সেটা কোনোটাই হয়নি। এইটা ফ্রম সিএম টু লোকাল নেতা যারা আছেন শাসক দলে, তারা আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা এনে থাকেন। 34 বছর তারা বলতে পারছে না, এই সম্বন্ধে আপনার কি বলবেন? 34 বছর পশ্চিমবাংলার যদি বেসিক ডেভেলপমেন্ট যা আমরা করেছি, এটা আমরাই করেছি। হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্টের কোনো ফুল স্টপ হয় না, হয়তো আরও হতে পারতো, কিন্তু আপনাকে একদিক করে বানাবো। আমাদের পশ্চিমবাংলায় যা আমরা করেছি, বিজেপি বা তৃণমূল বা বিজেপি যেখানে সরকার চালায় করতে পারেনি, সেটা ল্যান্ড রিফর্ম পলিসি। আমরা প্রথম গভর্নমেন্ট যারা চাষিরা যারা কাজ করতে যারা ভাবতে পারতো না, তাদের হাতে জমি তুলে দিলাম। এক, এগ্রিকালচারে যে ডেভেলপমেন্ট আমরা করেছিলাম, দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্ম বোঝে না। আর যদি তৃণমূল না আসতো তাহলে বুঝতে পারতেন না কি বামফ্রন্টকে কি গুরুত্ব আছে। আজকে দাঙ্গার কথা বলছিলেন, আজকে কিচ্ছু যত সমালোচনা করুন, এইটা কিন্তু এই অশান্তিটা বামফ্রন্টের সময় ছিল না। 2 নম্বর 3, আমরা কৃষিতে যে বাজার তৈরি করেছিলাম তাকে ভিত্তি করে শিল্প, আপনাদের মনে আছে শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচনা হয়, তো আমাদের রাজ্যের বাইরেও বহু শিল্প বন্ধ হয়েছে। মহারাষ্ট্র সব থেকে বেশি শিল্প বন্ধ হয়েছে, আমরা তো ওখানে গভর্নমেন্ট চালাইনি। গুজরাটেও শিল্প বন্ধ হচ্ছে, আমরা তো ওখানে গভর্নমেন্ট চালাইনি। 1991 সাল পর্যন্ত শিল্প করার জন্য লাইসেন্স প্রথা ছিল, পারমিশন নিতে হতো, আমাদের সুযোগ দেওয়া তখন হতো না। তা সত্ত্বেও আমরা বক্রেশ্বর করেছিলাম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, আমরা হলদিয়া করেছিলাম পেট্রোকেমিক্যাল, এবং ছোট মাঝারি আজকে আমাদের এই কৃষি সাফল্যকে ভিত্তি করে আমরা বলেছিলাম কৃষি আমাদের সাফল্য, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। আমরা আপনি কতদূর কেন আছেন, পানাগড়, রাতপিয়া, আমাদের মঙ্গলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট, জামুরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট, রানীগঞ্জের বড় মিল বন্ধ ছিল আমাদের সময়, আবার পেপার মিল আমরা তৈরি করলাম। সিঙ্গুরে টাটা মোটর গাড়ি কারখানা করতে এসেছি, যদি ওটা হতো আজকে গোটা পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি পাল্টে যেত। এবং চাকরির ক্ষেত্রে 10 বছরে আমরা প্রায় 20,000 লোককে চাকরি দিয়েছিলাম। পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এসএসসি, টেট, শিক্ষক নিয়োগ, এটা আমাদের কাছে একটা বিরাট সাফল্য। আজ কেন হচ্ছে না? আজ বন্ধু, আজ কেন শিল্প হচ্ছে না? একটা কারখানা হচ্ছে, ইট পাততে পারেনি মমতা সরকার। মোদী গভর্নমেন্ট 100% এফডিআই করেছেন, তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। আজকে কোথাও একটা কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর হচ্ছে না। ফলে আমরা এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট, আমরা রাস্তা কে করেছিল 34 বছর আগে, যেন কি ছিল পশ্চিমবঙ্গের, বিদ্যুৎ ছিল, ইলেকট্রিফিকেশন। আমরা আজকে তো একটা লাইট লাগাতে হচ্ছে তৃণমূল গভর্নমেন্টকে, আমরা ইলেকট্রিফিকেশন করেছিলাম। 5 কিলোমিটার ভিতর যান, এমন কোনো গ্রাম পাবেন না যেখানে আমরা প্রাইমারি স্কুল করিনি, স্কুল ছিল। আজকে আমাদের রানীগঞ্জের 14টা স্কুল, আমরা তো দাবি করেছি তৃণমূলের কাছে হিন্দি স্কুলের জন্য, ওই বালিকা বিদ্যালয়ে আমরা জমি ঠিক করে দিলাম, ওই জমি তুলে দিলে আজ পর্যন্ত হলো না। আমাদের সময় 14টা স্কুল, রানীগঞ্জে হাই স্কুল উর্দু মুসলিমদের জন্য, অঞ্জুমান, মাননীয় সনাতন বিদ্যালয় রেকমেন্ডেশন, আমাদের বাসন্তী দেবী গোয়েঙ্কা রেকমেন্ডেশন। আপনি ভাবতে পারেন একটা, তখন তো রানীগঞ্জ এটা এই গোটা তো না, সেটা তো তৃণমূল গভর্নমেন্টও বলছে আমরা যেখানে এখানে যারা প্রাইমারি স্কুল ছিল তাকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কোনটা নাম একটা বলতে পারবেন? আমরা করে দিয়েছি, সেটা আপনাদের। আমি বলছি আপনার চ্যানেল থেকে তৃণমূল নেতাদেরকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম কি রানীগঞ্জের কোনো একটা প্রাইমারি স্কুলকে হাই স্কুল করেছে, নাম বলুন। 1, আবার রঘুনাথ চক হিন্দি স্কুল আমাদের করা। নম্বর 2, কেনিউ করেছে, দেখেছেন কেনুর অবস্থাটা? এতগুলো স্কুল কলেজ আমরা চালাই, কেনুর ছেলেদের জীবনটা ভবিষ্যৎ ক্যারেসিন করে দিল মমতা সরকার। ওই হাট বসিয়েছেন উনি। আজকের মানে 3 বছর আগে যে ছেলেটা পরীক্ষা দিয়ে যার মধ্যে রেজাল্ট পাইনি, তো কি করেছেন তো ছেলে। আচ্ছা, আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন, যেটা আমার প্রশ্ন, লাস্ট প্রশ্ন ছিল ওর উপর ভিত্তি করে, যে ঠিক আছে সিঙ্গুরটা একটা সমস্যার ব্যাপার ছিল, সিঙ্গুরটা একটা অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার আছে কি হয়েছে, কিন্তু এইখানকার যে শিল্প হয়েছে আমার মনে হয় না রোজগার চেয়ে বেশি মানুষকে পলিউশন দিয়েছে এইখানকার মানুষদের। বক্তারপুরকে এই বিরোধীরা কালীনগর বলতো, তো আমরা বলেছিলাম ঠিক আছে আমরা যে শিল্পগুলো করেছি কালি খাওয়াচ্ছি, কিন্তু আজকে বুঝতে পারছেন তো কি হচ্ছে। আজ মঙ্গলপুরে আজকে নোটিশ হচ্ছে লোকাল ছেলেদের কাজ নেবো না, তৃণমূল দাঁড়িয়ে দেখছে, তো অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে। আজকে দেখেন শ্রমিকদের কোনো এগ্রিমেন্ট আছে, আমি যে পেপার মিলে কাজ করি তখন খুব এরা সমালোচনা করতো, অমুক করবো তমুক করবো, আজকে কত বেতন। আজকে পেপার মিলে 23 মাস এগ্রিমেন্ট হয়নি, আমি পেপার মিলে ব্যাপারটা ঠিক। এবং কালি বলছেন তো আমি পলিউশন যেটা মানুষ, যে মানুষটাকে রাজনীতি থেকে কোনো লেনা দেনা নেই, সে তো এই পলিউশনটা খাচ্ছে না। পলিউশন কন্ট্রোলের জন্য তখন হচ্ছে যে নিয়মিত ব্যবস্থাও নেওয়া হতো।
হ্যাঁ পলিউশন ছিল, আমরা কোনো অস্বীকার করেছি? মিথ্যা কথা বলার কি দরকার আছে? কিন্তু রোজগার তো চলতো। আর আপনার যদি আমরা তো হেরে গেলাম, আমি ধরে নিলাম কি পলিউশনের জন্য আমরা হেরে গেলাম, তাহলে আপনি পলিউশন বিন कारखाना কেন করে দিলেন না? আপনি এখানে পেপার মিলে আমার মনে আছে तृणमूल द्वारा बोला कोई कारखाना है ये डीएसएलआई का खोल है, तो डीएसएलआई का खोल का माचिस से तुम्हारा घर का चूल्हा जल रहा है तृणमूल का, तुम वहाँ पर टाटा को लेके चला आओ, আমার আপত্তি নেই। আজকে বাবুল সুপ্রিয় সাংসদ হিন্দুস্তান কেবল বললেন খুলে গেল, একটা শিল্পের ছুঁচের কারখানা করতে পারেনি তারা। बोला खूब सहज, हम लोग जब टीवी में सचिन को बैट करते देखते थे ना, है ये शॉट को मिस कर गया, हम जाएंगे तो बहुत अच्छा खेलेंगे, माठे नामुन आज के तो 10 বছর আপনিও মাঠে নামলেন খেলছেন আর মোদিজিও খেলছেন, গোটা ভারতবর্ষে কোথাও ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে না, নিয়োগ হচ্ছে না, সেই জায়গাতে বুঝছেন তাহলে কোন ক্রাইসিস জায়গা থেকে শিল্পগুলো আমাদেরকে বাধ্য করতে হয়েছিল, যাতে আমরা কিছুটা খেয়ে বাঁচাতে পারি, না খেয়ে লোক মরে যাবে, কালিতে পরে মরবেন আপনি। যাই হোক, ইনি ছিলেন আমাদের রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকর জি, বিট্টু শর্মা। রাজনীতিতে তো অভিযোগ প্রতিপক্ষ থাকবে, সেটা ছিল, আজকেও থাকবে, চিরকালই থাকবে, কিন্তু আমাদের যেটা দায়িত্ব হলো আমাদের পাবলিক টাইমসের ভিউয়ারদের কাছে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর কি চিন্তা ভাবনা আছে, কি অভিযোগ আছে সেটা তুলে ধরা, কিছুটা পেয়েছি, কিছুটা আনেওয়ালা দিনতে আমরা তুলে ধরব। লাস্ট আমরা সবার মতন সবাইকে আমরা শুভেচ্ছা দিয়েছি, হেমন্ত প্রভাকর জিকেও শুভেচ্ছা দিচ্ছি, তিনি জয়ী হয়ে আসুন। 34 साल में हम लोग सरकार चलाए, खामियां नहीं थी ये नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा तो झूठ बोलना होगा, लेकिन गलती से सीखना ये इंसान की फितरत में होना चाहिए। एकमात्र हमारी पार्टी, हमने जहाँ गलती की है हम आपके दरबार में गए, हम आपके साथ मिल बांट के उस गलती को सुधार के रास्ता चल रहे हैं। हम सत्ता के भूख से दल बदलने वाले लोग नहीं हैं, हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम आदमियों के लिए काम करना चाहते हैं। आपके घर का बेटा खड़ा हुआ है, मेरी योग्यता की बात अगर मैं कहूँगा तो ये अपने मुंह में मिट्टू बनना होगा। मैं चाहूँगा कि लाल झंडा शक्तिशाली किला रहा है वामपंथियों का, रोबिन सेन, हरदम राय, विकास चौधरी, वंशो गोपाल चौधरी, रुणदत्तो ऐसे नेता यहाँ पे हुए। हम चाहेंगे कि रानीगंज का जो समस्या है उसको अंतर दिल के साथ 10 साल परिवर्तन के समय में जिस दर्दनाक मंजर से रानीगंज को गुजरना पड़ा है वो हमने देखा है, हम उन समस्याओं को समाधान करेंगे। आपके घर का बेटा आपका आशीर्वाद चाहता है, प्यार चाहता है, आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। और दुष्यंत के मैं बहुत फैन रहा हूँ, दुष्यंत जी का एक लाइन था कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस बहती दुनिया को संभालो यारो, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछाला हो। आपके आशीर्वाद से उसी पत्थर को मैंने आसमान में उछाला है, मुझे यकीन है कि यहाँ बंगाल की जनता जीतेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि फूल बदल नয়, दिन बदल চাই, হাল ফেরাতে লাল ফেরাও। লাল পার্টি নেতৃত্বে, সংযুক্ত মোর্চার নেতৃত্বে আপনারা আমাকে আশীর্বাদ দেবেন এই বলে সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রণাম জানিয়ে আমার এইটুকু আপিল ছিল আমি শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার, আর আপনাদেরও চ্যানেলকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার মতন ক্ষুদ্র লোককে আপনারা এইরকম একটা জায়গায় বসিয়ে, এতদিন তো আমি রঞ্জি খেলেছি, আপনারা আমাকে সিডনিতে নিয়ে এলেন, তার জন্য ধন্যবাদ। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली
काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদেরকে কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886।
চয়েস দেখো কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। প্রচারে চমক আনছেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সায়নী ঘোষ করলেন দিন দিন প্রচারে চমক আনছেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ করলেন খোল করতাল সহযোগে অভিনব প্রচার। জামুরিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হরেরাম সিং করলেন সাংবাদিক সম্মেলন। বিধানসভা নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই জোরদার হচ্ছে সবকটি রাজনৈতিক দলের প্রচার। বৃহস্পতিবার নববর্ষ উপলক্ষে আসানসোল বিধানসভা এলাকায় খোল কীর্তন সহযোগে অভিনব প্রচার করলেন আসানসোল দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সায়নী ঘোষ। বিশাল বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় এদিন এলাকা ঘুরে অভিনব প্রচার করেন সায়নী। নববর্ষ উপলক্ষে সকলকে সম্প্রীতির বার্তা দেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সায়নী ঘোষ। শান্তির বার্তা দেবো, সম্প্রীতির বার্তা দেবো, বাংলাকে বাংলা রাখার বার্তা দেবো। ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম সকালবেলা উঠে আমাদের ছাত্র পরিষদের সঙ্গে, এবং আমার মনে হয় নতুন যৌবনের দুধ এরকম থেকে, এবং আমি দিদির দুধ, তাই আমরা সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাই বাংলাকে, এটাই কামনা করবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং কোভিড প্রোটোকল অন্যদিকে এদিন জামুরিয়ায় জোড়া পুকুর সংলগ্ন তৃণমূলের নির্বাচনী কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সাংবাদিক সম্মেলন করেন তৃণমূলের জামুরিয়ার প্রার্থী হরেরাম সিং, ছিলেন তৃণমূলের 1 নম্বর ব্লক সভাপতি সাধন রায়। এদিন বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেসের একযোগে বিরোধিতায় সরব হন হরেরাম সিং। तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए प्रयास कर रहा है, ये प्रयास यहाँ सफल नहीं होने वाला। एक तरफ सीपीएम जो है आईसी घोष को खड़ा किया है, जेएनयू से निकल कर के छात्रा यहाँ चुनाव में शामिल हुई है, और दूसरे तरफ तापस राय को खड़ा किया है। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये चुनाव जो है हम लोगों को जीतना है, और जनता को आशीर्वाद दे रही है। हर गांव में हम जा रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों को उत्साह देखने के बाद ये नहीं लगता है कि जमुरिया की जनता परिवर्तन नहीं चाहती है। 44 वर्ष लगातार सीपीएम का विधायक यहाँ रहा है, और सीपीएम के विधायक को चेंज करना है, ये जनता मन बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। তৃণমূল কার্যালয়ের বাইরে থাকা ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের স্টিল টাউনশিপের ভারতী মোড়ের কাছে একটি তৃণমূল কার্যালয়ের বাইরে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্গাপুরে তৃণমূলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হলো। নির্বাচনের আগে গতকালই ফ্ল্যাগ ফেস্টুন দিয়ে কার্যালয় সাজানো হয়েছিল তৃণমূলের। রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা সেই সমস্ত ফ্ল্যাগ ও ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি দুর্গাপুর ইস্পাত টাউনশিপের ভারতী মোড়ের কাছে একটি তৃণমূল কার্যালয়ে ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয় এলাকায়। ছুটে আসেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা, ছুটে আসেন 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর স্বরূপ মুখার্জি। তিনি জানান, গোটা ঘটনাটি তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন। অভিযোগ জানানো হয়েছে লিখিত আকারে। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটালো রাতের অন্ধকারে তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ। পতাকাগুলো আমাদের ছিঁড়ে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে, তো করেছে, কারা করেছে সেটা আমরা দেখিনি। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি ব্যাপারটা, আর নির্বাচন কমিশনকেও আমরা জানাচ্ছি। মানে একটা অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে, আমরা সেটা চাই না।
তাই জন্য নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি, পুলিশকে জানিয়েছি। কি মনে হচ্ছে কারা করতে পারে এটা? সেটা তো আমি চোখে দেখিনি কাউকে। হ্যাঁ, এগেনস্ট পার্টি করতে পারে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এবার বিধানসভা ভোটে নির্বাচন কমিশনের অভিনব উদ্যোগ 80 ঊর্ধ্বদের জন্য। এবার 80 ঊর্ধ্ব ভোটারদের যাতে বুথে গিয়ে কষ্ট করে ভোট দিতে না হয় সেই লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 80 ঊর্ধ্বদের ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এদিন ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হলো নির্বাচন কমিশনের তরফে। এবারের বিধানসভা ভোটে 80 ঊর্ধ্ব ভোটারদের জন্য অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। 80 ঊর্ধ্ব ভোটারদের যাতে কষ্ট করে বুথে গিয়ে ভোট দিতে না হয় সেই লক্ষ্যেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে পেপার ব্যালটের মাধ্যমে এদিন থেকে ভোট নেওয়ার কাজ শুরু করা হলো। বৃহস্পতিবার আসানসোলের 95 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে 80 ঊর্ধ্ব ভোটারদের ভোট সংগ্রহ করেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। শারীরিকভাবে অক্ষম এবং অসুস্থ প্রৌঢ়দের প্রতি নির্বাচন কমিশনের এহেন বিবেচনায় আপ্লুত ভোটার থেকে তাদের পরিবারের সদস্যরাও। এটা খুব ভালো ডিসিশন নিয়েছে নির্বাচন কমিশন যে বয়স্ক 80 ঊর্ধ্ব যারা আছেন তারা বাড়িতে এসে তাদের ভোট নেওয়া হচ্ছে। আমার শ্বশুরমশাইও ভোট দিয়েছেন, ওনার বয়স 90 বছর, উনি গিয়ে ভোট দেওয়া ওনার পক্ষে অসম্ভব ছিল, হয়তো ভোটটা দিতেই পারতেন না। আজ উনি নিজের ভোট নিজে দিতে পেরে উনিও খুব খুশি এবং আমরাও খুশি যে উনি ভোট দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে বয়স্কদের ভোট দেওয়া নিয়ে তো কোনো প্রবলেম হলো না, এবছর খুব ভালো লাগলো। বাট এবার আমাদের ভোটটা হোক, তারপর আর বাদ বাকি প্রবলেম বুঝতে পারবো কী হবে। আচ্ছা, এটা কত নম্বর বুথ পড়ছে? এটা 153 নম্বর। 153। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের নাম? ওনার নাম শ্রী কুমারী স্মিথ। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। বুধবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ পারিয়ালের সমর্থনে প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে গেলেন অনুব্রত মণ্ডল। বলেন, ভিন রাজ্য থেকে লোক নিয়ে এসে রাজ্যে সভা করা হচ্ছে, রাজ্যে করোনা ছড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্গাপুরের সুকান্তপল্লী ময়দানে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বনাথ পারিয়ালের সমর্থনে জোর প্রচার করে গেলেন বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। সভা থেকে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করেন অনুব্রত বাবু। বলেন, অনেক মিথ্যা কথা বলেছেন মোদী, মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক খারাপ কথাও বলেছেন, 24 ঘন্টা তাকে আটকে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির উপকণ্ঠে আন্দোলনরত কৃষকদের প্রসঙ্গ টেনে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেকে কৃষক দরদি বলছেন, অথচ দিল্লিতে এখনো কৃষকরা আন্দোলন করেই চলেছেন। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোক নিয়ে এসে সভা করা হচ্ছে এ রাজ্যে, তাই করোনা আরো ছড়িয়ে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর দাড়ি যতই বাড়ছে ততই বাড়ছে পেট্রোল, ডিজেলের এবং রান্নার গ্যাসের দাম। মমতা ব্যানার্জিকে ঠকিয়ে দেব সেই জায়গা করতে রাজি নয়। মহামারী মানুষের মুখ্যমন্ত্রী যতদিন থাকবে অনুব্রত মণ্ডল, ডাক নাম কেষ্ট মণ্ডল, আবার থাকবে। কথা দিলাম, বীরভূমের সিপিএম তাড়িয়ে ছেড়েছি, বর্ধমানের সিপিএম তাড়িয়ে ছেড়েছি, আবার বিজেপি তাড়িয়ে ছাড়বো। শেষ কথা বলে গেলাম, আমার ভাইটা পারিয়ালকে আমি ভোট দেবেন, জোড়া ফুলে ভোট দেবেন। অনুব্রত বাবু বলেন, সব জায়গায় কম দফায় ভোট হয়েছে, এখানে 8 দফায় ভোট কেন? কি অন্যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের? আজকে তোমার দিয়ে আমাদের তামিলনাড়ুতে 1 দফায় ভোট, কেন 8 দফায় পশ্চিমবাংলায় ভোট করতে হলো? কি অন্যায় পশ্চিমবাংলার মানুষের? কেন এখানে 4 দফায় করলো না? কেন 3 দফায় করলো না? এই দায়িত্ব নরেন্দ্র মোদীকে নিতে হবে। পাশাপাশি এদিন খেলা হবে বলে ফের একবার স্লোগান দিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, এখন বলে পাচ্ছে না, এখন আর বুক ফাটে না, এখন আর বুক ফাটে না। সবশেষে এদিন সভা মঞ্চ থেকে প্রার্থীকে ভোট দেবার আবেদন রাখেন অনুব্রত মণ্ডল। কিছু ভোট দেবেন, পারিয়ালকে ভোট দিলে আমাদের লাভ হবে, আমাদের লোকসান হবে না। দুটো কথা বলতে পারবে, দুটো ধমকাতে পারবে। আর রাক্ষসের দলকে ভোট দিলেন না, ওরা ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দল, ত্রিপুরাকে শেষ করে দিল। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন।
की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে, মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা, মনপসন্দ। मैं रवि केसरी बीजेपी रानीगंज मंडल 1 का कोषाध्यक्ष आप सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 विधानसभा सीटों से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए एवं पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाने में अपना बहुमूल्य समर्थन दे। भारत माता की जय। अब की बार मोदी सरकार। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। আজ পয়লা বৈশাখ, ব্যবসায়ীদের হাল খাতা করার দিন। এবার কোভিড বিধি মেনেই মন্দিরে মন্দিরে হলো পুজো। আসানসোলের ঘাগরবুড়ি মন্দিরে এদিন ভোর থেকেই নববর্ষ উপলক্ষে ছিল বিশেষ পুজো পাঠের আয়োজন। রানীগঞ্জ শরণা সংগঠনের তরফেও ছিল নববর্ষ উপলক্ষে প্রভাত ফেরি। এসো হে বৈশাখ এসো এসো। বাংলা নববর্ষে কবিগুরুর এই গান আজও বাঙালি হৃদয়ে বাজে। বাংলা নববর্ষ মানেই হতাশা আর আশঙ্কার কালো মেঘ সরিয়ে নতুন আশার আলো দেখা। প্রতিবছর ঘটা করে মন্দিরে পুজো দিয়েই নতুন বছর শুরু করেন আম বাঙালি। সেই উপলক্ষেই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে নববর্ষের বিশেষ পূজার আয়োজন ছিল এদিন। যদিও মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি করোনা বিধি মেনেই আড়ম্বরভাবে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিনে আসানসোলের ঘাগরবুড়ি মন্দিরে সকাল থেকেই শয়ে শয়ে ভক্তের ছিল জমায়েত। কেউ বা এসেছিলেন পরিবারের মঙ্গল কামনায় পুজো দিতে, কেউ বা বছর পয়লায় হাল খাতা পুজো সারতে। অন্যদিকে দুর্গাপুরের ভিরিঙ্গি কালীবাড়িতেও একই ছবি, ভক্তের ভিড় ছিল দেখার মতন। মন্দিরে হাল খাতা পুজো করালেন ব্যবসায়ীরা। নববর্ষের সেই চেনা ছবি দুর্গাপুরের বিনাচিতি বাজারেও। অপরদিকে এদিন রানীগঞ্জে রানীগঞ্জ শরণা সংগঠনের তরফে নববর্ষ উপলক্ষে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়েছিল।
বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রভাত ফেরিতে হাঁটলেন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শহরের প্রবীণ ও বিজ্ঞজনেরা। রানীগঞ্জের বঙ্গভবন থেকে শুরু হয় এই শোভাযাত্রা। সব মিলিয়ে বাঙালির নববর্ষ জমজমাট। শুভ নববর্ষে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে এই কোভিড-19 পরিস্থিতি যেন শান্ত হয়ে যায়, আমরা যেন বছরটা। पब्लिक टाइम्स। विधानसभा चुनाव से पहले जामुड़िया के दरबार टांगा घाट पर पुलिस की नाका चेकिंग की जा रही है और यहां से गुजरने वाले हर छोटे बड़े वाहनों की ली जा रही है सघन तलाशी। जामुड़िया समेत पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड की सीमा के साथ ही पश्चिम बर्धमान जिले से लगे आस पड़ोस के जिलों की सीमा पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जामुड़िया थाना क्षेत्र के अजय नदी दरबार डोगा घाट पर पुलिस द्वारा नाका चेकिंग की जा रही है। घाट पर ही पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और यहां से गुजरने वाले हर छोटे बड़े वाहन की तलाशी ली जा रही है। पश्चिम बर्धमान जिले को बीरभूम से जोड़ने वाले इस घाट पर पुलिस का सख्त पहरा है। चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की खलल ना पड़े, इस पर पुलिस प्रशासन खास ध्यान दे रहा है और सीमावर्ती इलाकों में लगातार नाका चेकिंग की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अजय नदी का दरबार डोगा ब्रिज अत्यंत महत्वपूर्ण है और नदी के उस पार बीरभूम जिला है, इसलिए यहाँ से गुजर रहे सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। जामुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরের সময় এখন আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকবেন। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622. 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with the birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और
ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है राम कुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা, যেটি আইএসসি পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল আইসিএসই পাঠ্যক্রমের সাথে কো এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मेदिनीपुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। आसनसोल के कल्ला प्रभु छठ घाट का रास्ता बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए समाज सेवी और बीजेपी नेता कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। पुलिस के आश्वासन के बाद रास्ता जाम हटाया गया। आसनसोल कल्ला इलाके में प्रसिद्ध प्रभु छठ घाट का रास्ता बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए समाज सेवी और बीजेपी नेता कृष्णा प्रसाद अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए। बृहस्पतिवार को उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इसे लेकर थोड़ी देर के लिए इलाके में उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया। बताया जाता है कि कल्ला के प्रभु छठ घाट पर हर साल लोक आस्था के महापर्व छठ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह छठ घाट आस्था एवं विश्वास का केंद्र है और पिछले लगभग 44 वर्षों से यहाँ छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। कल्ला नदी घाट पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिज निर्माण के कारण छठ घाट जाने का रास्ता बंद होने की आशंका है। प्रभु छठ घाट पर छठ पूजा का आयोजन करने वाले समाज सेवी और बीजेपी नेता कृष्णा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत छठ घाट जाने वाले रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। कल्ला नदी पर ब्रिज का निर्माण किया जाना सराहनीय कार्य है, लेकिन छठ घाट का रास्ता बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग और जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कल नहीं होगा तो फिर रिटिंग कंप्लेन देंगे। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर तो 1 साल से बोल रहे हैं, 6 महीना से तू बोल रहा है कभी काम करा रहा, अभी करा, 1 साल से हम बोले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन कल फैसला नहीं हुआ, सब बंद हो सब। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी कल्ला इलाके में पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জে পুলিশি তরফে নাকা চেকিং চালানোর সময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করলো 1,70,000 টাকা নগদ। উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ নিয়ে ওই ব্যক্তি কোথায় যাচ্ছিল তার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। আসানসোলে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা করলেন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক থেকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন জেপি নাড্ডা। রানীগঞ্জ বিধানসভার সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকরের কাছে কতটা চ্যালেঞ্জ এবারের বিধানসভা নির্বাচন, কি রণকৌশলে এগোচ্ছেন তিনি, দেখুন প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার পাবলিক টাইমসের এডিটর ইন চিফ বিনোদ জসওয়ালের। প্রচারে চমক আনছেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার আসানসোলে দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ করলেন প্রচার। অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন জামুরিয়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হরেরাম সিং। দুর্গাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের বাইরে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
বিধানসভা ভোটে 80 ঊর্ধ্বদের জন্য অভিনব উদ্যোগ। নির্বাচন কমিশনের 80 ঊর্ধ্ব ভোটারদের যাতে বুথে গিয়ে ভোট দিতে না হয় সেই লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি ব্যালট পোস্টারের মাধ্যমে ভোট নেওয়ার কাজ শুরু করল নির্বাচন কমিশন। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিশ্বনাথ পারিয়ালের সমর্থনে প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে গেলেন অনুব্রত মণ্ডল। বললেন, রাজ্যে করোনা নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ পয়লা বৈশাখ, ব্যবসায়ীদের হালখাতা করার দিন। এবার কোভিড নিয়ম মেনেই মন্দিরে মন্দিরে হলো পুজো। আসানসোলের ঘাগরবুড়ি মন্দির থেকে দুর্গাপুরের পেয়ালা কালী মন্দির সর্বত্রই ছিল ভক্তদের ঢল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে জামুরিয়ার দরবারডাঙ্গা ঘাটে পুলিশি তরফে চালানো হলো নাকা চেকিং। সমস্ত যানবাহনে চালানো হয় তল্লাশি অভিযান। আসানসোলের কাল্লা ছট ঘাটের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা কৃষ্ণপ্রসাদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হলো। পুলিশি আশ্বাসে যদিও পরে তুলে নেওয়া হয় অবরোধ কর্মসূচি। খবর শেষ করবার আগে এখন আরো একবার আপনাদের নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।